हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले करोड़पति फकीर से। क्या वाकई फकीर करोड़पति है? और जो इसने पुलिस पर इल्जाम लगाया उन्होंने मुझसे 7 लाख से ज्यादा रकम छीनी। असल कहानी क्या है देखिए और सुनिए फकीर की जुबानी। 3 करोड़ का ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ क्या 3 करोड़ है भी कि नहीं है? मेरे को जी 3 करोड़ नहीं है जी। 50 साल तो जी मैं घर पैसे कागज बोतल गट्टा चुकदा जी, वो बेचदा ते कोई 10 भी उदा दे दिंदा जी। मैं थोड़े थोड़े करके घर जोड़ जोड़ के इदा जी। पुलिस वाले उसको अंडर एस्टिमेट करके उसके पैसे खा गए कि ये हमारे हमसे पैसे ले नहीं सकता। अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाजरीन, आज मेरे साथ जो मौजूद है बहुत ही ज़्यादा इसको शोहरत मिली है सोशल मीडिया पे कि ये करोड़ों का मालिक है। तो ये इसी की ज़ुबानी सुनेंगे कि क्या इसके अकाउंट में करोड़ों रुपया है। और दूसरा ये जो पुलिस थी थाना सिटी जड़ांवाला की, जो मुलाजमीन थे जो जिन्होंने इससे पैसे छीने हैं, वो कितने पैसे थे और वो पैसे किस मकसद के लिए वो लेके जा रहा था, ये इसी की ज़ुबानी हम सुनेंगे। यकीन आए थोड़ा मुजफ्फर जी। अच्छा मुजफ्फर साहब, यह दसो कि तुसी ਜਿਹੜਾ पैसे लैके कितों आ रहे सी ते कित्थे लैके जा रहे सी? ਜਦੋਂ पुलिस वाले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे खोए ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? घरों अपने जी 7,10,000 रुपया जी पठान चक 103 लैके आ रहा जी। प्लाट लिया जी मुल ते 27 ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੱਥਾ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਠਾਣਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 7,10,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਠਾਣਦਾਰ ਨੇ 7,10,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜੀ। ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 7,10,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ 13 ਤਰੀਕ है जी, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਵਜੇ 13 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ? ਮਗਰ ਮੈਂ ਭੱਜੇ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਠਾਣਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? 2,10,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਕੋਲ, ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। 7,10,000 ਚੋਂ 15-20,000 ਨਾ ਘੱਟ ਲੈ ਲਾ ਤੇ 7,10,000 ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਾ। ਜ਼ਹੀਰ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਹੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 7,10,000 ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜੇ ਲੈ ਲਾ ਪੈਸੇ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7,10,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੀਨਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਤਲ ਗੱਟਾ ਚੁਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 10 ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਜੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਏ ਆ ਜੀ ਮੰਮੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਮਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅੱਡੇ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇ ਜੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਲਿਖਤਾ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਛੜੇ ਆ ਪਰਚੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੀ 7,000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 4,000 ਰੁਪਈਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਖਵਾੜ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ 7,10,000 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਜੀ 18,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ।
अच्छा बस 18,000 रुपया। हाँ जी वो देंगे आ जी। अच्छा मैं कहा जी मैं नहीं लेना इन्ना जी। जी नाज़रीन, हमने आज आपकी मुलाकात करवाई करोड़पति, जो सोशल मीडिया पे सिर्फ करोड़पति है, उस फ़कीर से मुलाकात करवाई। इसका नाम मुजफ्फ़र है, ये जड़ांवाला के नवाही गांव चक नंबर 103 गाबे का रहने वाला है। और इससे हमने जो इसके साथ जो वक़ुआ हुआ था, पुलिस ने इससे पैसे छीने थे, उसके मुतल्लक बात आपने सुनी होगी। और इसके साथ साथ हमने ये भी इससे पूछा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये भी आपने सुना इसकी ज़ुबानी। और इसमें नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद था कि जो हकीकत है वो आपके सामने रखी जाए। तो हमारे साथ जो वकील हैं इनके राना महमूद अहमद साहब, जो साबिक़ बार सेक्रेटरी जड़ांवाला भी हैं, उनसे भी हम इसके केस के मतलब पूछेंगे और इनके सब हक़ाइक़ पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो पुलिस का मौक़िफ़ है, क्योंकि ये इनका शुमार जो है वो सीनियर तरीन वकला में होता है। और ये जैसा मैंने बताया कि ये साबिक़ जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन जड़ांवाला भी हैं, तो इनके साथ पुलिस ने रब्ता किया, क्या वो इस केस को वाइंड अप की तरफ ले जाना चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना महमूद अहमद ख़ान साहब, ये सीनियर वकील हैं तहसील बार जड़ांवाला के, और ये साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन जड़ांवाला के। तो इनसे सारे जो हकीकत है केस की और फ़कीर की, इस पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ये फ़कीर है मुजफ्फ़र, तो असल हकीकत क्या है कि ये मामला जो पुलिस ने उससे पैसे छीने हैं वो भी, और क्या उसके पास इसके अलावा कोई पैसे हैं? जो बताया जा रहा है कि 3 करोड़ पे हैं उसके अकाउंट में हैं। जी असल बात ये है कि ये जो बंदा ना, ये जड़ांवाला से कोई 10-12 किलोमीटर के फासले पे इसका गांव है। मुजफ्फ़र नामी शख्स है ये मांग के और कागज़ वगैरह इकट्ठे करके ये ऐसे ना इसने पैसे इकट्ठे किए थे प्लाट लेने के लिए। बकौल इसके कि वो कहता है कि मैं वकूवे के रोज़ पैसे लेकर छापर में मैं आ रहा था। जब मैं इधर जड़ांवाला में एसी की कोठी के सामने उतरा हूँ, वैगन से उतरा हूँ, तो मैं रक्शे के या किसी के इंतज़ार में खड़ा था, तो ये पुलिस वैन आई है, सफ़ेद रंग का डाला था, जिसमें 3 जो अफराद जो थे पुलिस मुलाजमीन जो थे सवार थे। उन्होंने, वो कहता है कि मुझसे उन्होंने ज़बरदस्ती छापर छीन लिया और मैंने आगे से मज़ामत भी की है, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती छापर छीन के उन्होंने डाला जो था ना वो भगा दिया। वो कहता है कि मैं उसका पीछा करते करते मैं आया हूँ थाना सिटी जड़ांवाला में। मैंने वहाँ पर आके मैंने मुलाजमीन को जो शनाख्त भी कर लिया और मैंने अपने पैसों का जब मुतालबा किया, तो वो पुलिस ऑफिसर जो थे उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि हमारे पास जो पैसे हैं ना आपके, वो जितने आप बताते हैं उतने नहीं हैं। वो क्लेम करता था कि मेरे 7,10,000 रुपये है, जबकि ये कहते थे, पुलिस वाले कहते थे मेरा 5 लाख रुपया है। तो उसने वो पैसे 5 लाख रुपया वसूल करने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैं 7,10,000 ही लूँगा। अगले रोज़ वो मेरे पास आ जाता है, आके कहता है कि मेरे साथ थाने चलो। मैंने कहा जी कि मैं वकील हूँ, मैं थाने तो नहीं जाऊँगा, मैं आपको एप्लीकेशन लिख देता हूँ, जो इनके हायर ऑफिशियल है उनके पास चले जाओ। तो मैंने एक दरख्वास्त लिख के दी DSP जड़ांवाला के नाम। तो ये DSP जड़ांवाला के पास गया, वहाँ जाकर ये तकरीबन 1 महीना तक ये उनके पास घूमता रहा, कभी DSP के पास, कभी SP के पास। तो पुलिस ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। जब उनकी कोई बात नहीं सुनी तो फिर मैंने एक पटिशन 22 से 22B दायर की अंदराज पर्चे के लिए। वो भी मेरा दोस्त कुलीग था राइश फाक, उसने दायर की थी। दायर करने के बाद मैंने भी अपना वकालतनामा दिया। उसमें जज साहब ने जो ये बंदा था मुजफ्फर नामी, इसका मौक़िफ़ सुना, पुलिस से कमेंट्स तलब किए। तलब करने के बाद उन्होंने जज साहब ने पूरी इसमें इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने जो जहाँ से वो उसने प्लाट ख़रीदा था उस बंदे से इंक्वायरी की। उसके बाद स्टाम्प जो था उसको चेक किया। फिर जो डीलर था जिसने वो उसको प्लाट ख़रीद के सौदा करवाया था, उसके साथ उससे इंक्वायरी की जज साहब ने। करने के बाद जज साहब ने अंदराज पर्चे का आर्डर कर दिया पुलिस के ख़िलाफ़। वो पुलिस मुलाजमीन जो हैं, जो या पुलिस ऑफिशियल जो हैं, उन्होंने FIR दर्ज ना की। 10-15 रोज़ तक फिर गुजर गए। फिर हमने एक अंदराज वो एक हमने दरख्वास्त दी अमल दरामद के लिए कि अदालत को कि आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा और FIR दर्ज नहीं हो रही। तो अदालत ने दोबारा पुलिस ऑफिसर जो है उनको तलब किया।
वहाँ पर जो उस वक्त मुतलका SHO था वो वहाँ पर पेश हुआ, 2-3 मुलाजमीन और भी पेश हुए, और सदर बार जड़ावाला की तरफ से एक दोस्त हमारे वकील साहब साथ गए। इन्होंने बाकायदा जाके टाइम लिया कि हम ये इसके पैसे जो रिटर्न कर देंगे, तो हमें 2-3 दिन का टाइम दो। तो जज साहब ने टाइम दे दिया, फिर डेट पड़ी, फिर इन्होंने पैसे ना दिए। अब कल 10 तारीख है, 10/6/2023 डेट मुकर्रर है। साहब ये बताएं कि जैसे आपने ये केस की जो सारी सूरत बताई है, क्या इसमें जो करोड़पति का जो बात वायरल हुई है सोशल मीडिया पे हमारे में, कि जज साहब ने उसका अकाउंट चेक किया, उसमें 3 करोड़ रुपया मौजूद था, तो क्या इस बात में क्या हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है। ना जज साहब ने कोई ऐसी इंक्वायरी की है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट मांगी है, ना ही जज साहब ने ये पूछा है कि वो आपकी कितनी पीछे कितनी ज़मीन है या कितनी आपकी आमदन। सिर्फ जज साहब ने सिर्फ इतना पूछा है कि आप जो पैसे लेकर आए थे शहर, वो किस पर्पज़ के लिए लेकर आए थे। कि राना साहब ये तो बात क्लियर होगी ना कि उसका ना ही अकाउंट है, ना ही अकाउंट में 3 करोड़ रुपया है। अच्छा राना साहब, आप माशाल्लाह सीनियर तरीन वकला में आपका शुमार होता है जनावाला बार एसोसिएशन में, तो आप साबिक बार सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो जो पुलिस पार्टी है, जो इसकी जो मुखालफ पार्टी है पुलिस, क्या जो पुलिस वाले भी आपके पास आए हैं इसको मामले को रफा दफा करने के लिए? जी, मेरे पास SHO मुतलका इमरान साहब आए हैं, जो उसमें FIR जिसमें दरख्वास्त में उनका नाम भी है, ज़हीर आया है जो उस वक्त ड्राइवर था, और 2-4 दोस्त और भी आए हैं। एक बंदा जिसको ये कहते हैं अब्बास नामी बंदा ना, जिसके पास वो कहते हैं पैसे पड़े रहे हैं। तो उनका मौक़िफ़ जो उनके बयान में काफ़ी तज़ाद है। जो ज़हीर है वो कहता है कि छापर मैंने जो है वो लाकर थाने दे दिया था SHO मुतलका को। SHO कहता है कि मैंने अरशद नामी बंदे को दे दिया था कि वो ईमानदार है। अरशद नामी बंदा कहता है कि मैंने अब्बास ASI जो SHO का कार्य ख़ास था, जो उस वक़्त उस SHO का बड़ा करीबी था, मैंने जब SHO का तबादला हुआ है इमरान साहब का, तो मैंने उसको दे दिया था। ठीक है जी। वो कहता है कि मैं पैसे निकाल के उसको इस्तेमाल करता रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पैसे कितने थे। ठीक है, वाला खुद करार कर रहा है कि पैसे मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। इस बात तक हद तक वो मानते हैं, लेकिन वो 7,10,000 रुपया नहीं मानते। वो कहते हैं कि पैसे थे, छापर भी था, लेकिन वो पैसे कितने थे ये हमें नहीं कह सकते कि वो पैसे जो है वो 7,10,000 था। मैं तो पैसे निकाल के इस्तेमाल कर लिए हैं, जो पैसे मेरे पास पड़े हैं वो मैं ला के देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को वो मानते हैं। तो अब वो क्या देना चाह रहे हैं कि 7,10,000 रिटर्न करेंगे कि, या वो जितने भी, वो क्या कह रहे हैं, कोई इसका कोई एंड निकलेगा जी कि FIR ही होगी? मेरा अंदाज़ा ये है कि पुलिस पैसे ऐसे इतनी जल्दी नहीं देगी, क्योंकि पैसे इन्होंने सब ने तकसीम कर लिए हैं, और जो आला अफसर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फ़कीर है इसको किसी तरह से कंप्रोमाइज़ हो जाए, पैसे ना रिटर्न करने पड़े। ऐसे जाके अदालत में बयान दे दे कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, या मेरे पैसे छीने नहीं गए थे, या मुझे पैसे बाद में कहीं से मिल गए थे। मेरा अंदाज़ा यही है कि वो कंप्रोमाइज़ वाली तरफ इस तरह कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसकी दादरसी करने से इनकारी हैं। वो मुअज़्ज़िन इलाका को डालकर, उसके घर वालों को प्रेशराइज करके, उस मुलांग को प्रेशराइज करके वो कोशिश कर रहे हैं कि पैसे ना देने पड़े, ऐसे ही जो है बात ख़त्म हो जाए। मेरा अंदाज़ा यही है, ऐसे ही लगता है। तो मुझे इसका हल जो यही निकलेगा कि अदालत पर्चा देगी। उन्होंने तो ये सोचा था कि ये फ़कीर आदमी है, ये किधर से वकील करेगा, ये इसके सोर्सेज ही नहीं होंगे, ये कैसे पैदा करेगा, ये कैसे जज साहब के पास जाएगा। तो इनको तो ये था ज़्यादा से ज़्यादा DSP के पास जाएगा, SP के पास जाएगा, उधर तो इसकी कोई दाल नहीं गलेगी, ये बैठ जाएगा आराम से। उसको ये नहीं पता था कि वकील के पास जाएगा, वो इसकी आवाज़ जो आला काम तक अदालत तक पहुँचाएगी, अदालत आगे कोई पर्चे का आर्डर करेगी। असल में उनकी ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी।